हेलो बच्चों, सब्जेक्टिव स्टडी अगर आपने अच्छे से कर ली है तो जो एक्सरसाइज क्वेश्चन ले रहे हो आपको अच्छे से समझ में आ सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी आपका सब्जेक्टिव का टेक्स्ट बुक है वो भी पढ़ना स्टार्ट करो। शॉर्ट में नोट्स बनाना भी साइमल्टेनियसली आपको करना ही है, क्योंकि वो करोगे तो ये अच्छे से समझ आ सकता है। इसलिए अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसमें हम स्टार्ट कर ले क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. What is that question? Now see here. Answer in one sentence or word. In that first question is hydroboration, oxidation of propene gives. जैसे कि पहले वाला जो टॉपिक है ना, हैलोजन डेरिवेटिव्स, उसमें भी हमें ये रिएक्शन गई है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन मीन्स विच रिएजेंट्स वी हैव टू यूज? वी हैव टू यूज B2S6 which is called as a diborane, as well as we have to use hydrogen peroxide in basic medium. When we are using this reagent, at that time we can convert the alkene into the primary alcohol. Means in this reaction what will be the product? Now see here, propene CH3 CH double bond CH2. When we are using this reagent B2S6 H2O2 and NaOH, at that time we will get the primary alcohol. Means OH will attach to this carbon and that product will be CH3 CH2 CH2OH. That name of this product is propan 1-ol, and this is the structure of propane. Hope so everyone understood that first question answer. You will say, ma'am, everything we have to write? No, it is for your understanding purpose. Simply you have to write that much answer, or you can draw this structure and write the name. Next question. Write the IUPAC name of alcohol having molecular formula C4H10O, which is the resistant towards the ऑक्सीडेशन। जैसे कि देखो, अगर हम ऑक्सीडेशन कंसिडर करते हैं तो ऑक्सीडेशन होने के लिए वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम कंसिडर करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, दे अंडरगोज ऑक्सीडेशन। बट इफ वी कंसिडर टर्शरी अल्कोहल्स, they do not undergo oxidation. Means they have resistance towards the oxidation. What is that formula? Formula is C4H10O. जैसे कि हमें पता है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, दैट इज द टर्शरी अल्कोहल. If you don't have this structure directly or don't know how to draw, then it is important to draw all the possible structure of the primary, secondary as well as tertiary, and then you can decide which one is the tertiary alcohol and you can write the final answer. But it is taking too much time, that's why I'm telling you, when C4H10 is there, simply we have to write one carbon, to that OH will be attached because this is the alcohol. Tertiary alcohol we want, that's why each carbon should be attached to the 3 carbon atoms, and that is the correct answer and correct structure of the tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol is the common name, but they ask here IUPAC name. Now how to write the IUPAC name? See here, as we know that rules, in that first rule is that select the longest chain. When we are selecting that longest chain, at that time substituent or functional group attached carbon should be included. Now see here, if we consider this is the longest chain, which one we have decided. So here that OH is attached to this carbon. Now we have to start the numbering from top to bottom or bottom to top. We can start numbering, but because anyhow that OH containing carbon is coming at the second position. So 1, 2, 3. So what will be name? Now see here, 2-methyl, because at the second position OH as well as CH3 is there. So its IUPAC name is 2-methyl propan 2-ol. This is the correct IUPAC name of this structure. So here we have completed 2 questions. Next one is that write the structure of optically active alcohol. What is that? Optically active alcohol having molecular formula C4H10O. That is, again it is the alcohol.
Clear? But here we have to find out optically active. So before going towards that main answer, we should know that what is meant by that optically active. Listen, when we are saying any compound is optically active, means it can rotate or it is capable to rotate the plane polarized light, and that is the optical, that compound is optically active. Once again I am repeating, listen carefully. The compound which is capable to rotate the plane polarized light, that compound is optically active. Now which compounds are optically active? Those are having the chiral center or chiral carbon. What is mean by that chiral carbon? Chiral carbon is nothing but the carbon which is attached to the 4 different groups. अब ये 4 डिफरेंट ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं बोल देती हूँ आपको। पहले हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपने इसका आंसर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो एटलीस्ट, और उसके बाद नोट्स कंप्लीट करना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मिल रहा है आंसर के साथ, तो आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बोलते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कितने कार्बन वाला है, मैंने आपको डेफिनेशन बोल दी है। ऑप्टिकली एक्टिव किसको बोलना है, किसको बोलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, और कायरल कार्बन मतलब क्या, वो ऑल पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे C4H10O ये इतना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेना है और इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। देखो अगर हम कंसिडर करते कार्बन जिसको एक OH तो कंपलसरी रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल, तो एक तो हो गया OH। OH छोड़ के उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब एक हमें चाहिए हाइड्रोजन। अगर 4 ही कार्बन है तो 4 कार्बन में एक तो हमने यूज कर लिया, बचे कितने 3, तो 3 को हमें डिफरेंट में सेपरेट करना है। तो वो कैसे हो सकता है CH3 और यहाँ पे C2H5 में हो सकता है। तो ये है कायरल स्ट्रक्चर और वी कैन से दैट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये स्ट्रक्चर भी हमने ड्रॉ कर लिया है जिसका हमें आंसर बोलना था। ठीक है, अब बोलोगे आप मैम आपने कैसे ड्रॉ कर लिया। देखो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, अगर हम सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ करते बैठेंगे तो कैसे करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कभी नहीं देगा क्योंकि जिस कार्बन को OH अटैच है वो अदर 2 हाइड्रोजन को अटैच है। अगर हम कंसिडर करते हैं नेक्स्ट वाला CH3 CHOH CH3 CH2, तो वही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अगर आप बोलो कि टर्शियरी ब्यूटिल भी ड्रॉ कर सकते हैं मैडम, क्योंकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो हमने वही कर दिया, पर यहाँ पे अगर हम बोलते टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है पर हर वो जो सेंट्रल कार्बन है उसको सिर्फ एक ही डिफरेंट ग्रुप है, बाकी के तीनों क्या है सेम है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है, कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। तो सिंपली हमारा आंसर क्या है, तो ये वाला सेकेंड वाला स्ट्रक्चर जिसको मैंने ऐसे फॉर्म में ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रक्चर। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट लास्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन कोल्बेज रिएक्शन। अब ये कोल्बेज रिएक्शन क्या है वो भी देखेंगे, पहले उसका आंसर मैं सिर्फ बोल देती हूँ क्योंकि वो एक वर्ड में आ सकता है। क्या है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द इलेक्ट्रोफाइल विच इज यूज्ड इन द कोल्बेज रिएक्शन। उसके पहले अभी देखते हैं कि कोल्बेज रिएक्शन क्या है। कोल्बेज रिएक्शन में क्या करेंगे हम, जो कुछ भी सोडियम फिनॉक्साइड होता है उसको ट्रीट करेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एट 398 केल्विन अंडर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा इंटरमीडिएट में। वो इंटरमीडिएट क्या है, सोडियम सैलिसिलेट, और जब उसको हम फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसके बाद हमें मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। मतलब इसमें से हमें क्या मिलेगा, देखो सोडियम फिनॉक्साइड, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये है सोडियम फिनॉक्साइड का। इस पर जब हम CO2 398 केल्विन टेम्परेचर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करेंगे फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में सिंपली हमें करना है एसिड हाइड्रोलिसिस। तो उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है ये वाला OH और COOH। जब बेंजीन रिंग को सिर्फ COOH अटैच होता है तो हम बोलते हैं उसको बेंजोइक एसिड, और ऑर्थो पोजीशन पे OH है इसलिए मैंने बोला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 विच इज फ्रॉम द अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करने के लिए
उनका आंसर विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचा है आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।